Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 1. We are going to start Unit 6. Its title is Never Lie. So first we'll see the SLO based lecture division for this unit, and then we'll discuss what this unit is all about. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. And in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about singular, plural, and we'll cover the SLO to recognize and change the numbers of simple naming words by adding or removing S. In lecture 2, again under the title of grammar, we'll learn about substitution words and we'll cover the SLO to recognize and use substitution words as subjective case I, we, you, he, she, it, and they. Lecture 3, under the title of grammar, we'll learn about describing words and we'll cover the SLO to use some describing words showing quality, size, and color. Lecture 4, under the title of Language Focus, we'll learn about digraphs and we'll cover the SLO to recognize and identify digraphs. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to predict story by looking at pictures in text. Use pictures to increase understanding. Lecture 6, we'll continue reading and understanding the text and we'll learn further about the SLOs to predict story by looking at pictures in text and use pictures to increase understanding. Lecture 7, under the title of Oral Communication Skill, we'll learn to recite and understand poem, and under the title of Writing, we'll learn about date and captions, and we'll cover the SLOs to recite poems with actions, write date and captions on page 12. Yes, my dear fellow teachers and my dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this text is all about. So here we are on page number 48. This is the title of this story is Never Lie. What does it mean? अच्छा बेटा, एक होता है आपको कहा जाए डोंट लाई, इसका मतलब है झूठ मत बोलो. अगर आपको कहा जाए नेवर लाई तो इसका मतलब है कभी भी झूठ मत बोलो. राइट? क्यों? क्योंकि झूठ बोलने का हमेशा नुकसान होता है. झूठ बोलने वाले को खुद उसका नुकसान होता है और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनको भी उसके झूठ बोलने से नुकसान उठाना पड़ता है. ये इस हमारे आज के जो टेक्स्ट है, हमारा आज का जो यूनिट है उसका थीम है. अब देखते हैं किस तरह से इसको स्टोरी में मेंशन किया गया है. मुन्नू हैड अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई. अब इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है एक बच्चा है जिसका नाम है मुन्नू, और उसको क्या बुरी आदत थी कि वो झूठ बोलता था. His father always advised him that lying is a bad habit. उसके वालिद साहब उसको हमेशा ये नसीहत करते थे कि बेटा झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है. One evening, एक शाम, मुन्नू and his father were walking down the street. मुन्नू और उसके वालिद गली में पैदल जा रहे थे. ऑन द वे, रास्ते में, दे सॉ अ कार, उन्होंने एक कार देखी, क्रैश्ड इनटू अ बुक स्टोर, जो कि एक बुक स्टोर में लगी थी. यानी उसका बहुत बुरी तरह से बुक स्टोर के साथ उसकी टक्कर हो गई थी. क्रैश्ड इनटू. ओके. मुन्नू's father asked a man about this incident. मुन्नू के वालिद साहब ने एक आदमी से इस वाक़या के बारे में पूछा, दरियाफ्त किया. The man replied, उस आदमी ने जवाब दिया, सर, जनाब, a boy who was driving this car, एक लड़का जो कि ये कार चला रहा था, lied to his father. उसने अपने वालिद साहब से झूठ बोला that he could see clearly without glasses.
अब क्या है असल में सिचुएशन कि वो बच्चा, वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, वो पावर ग्लासेस पहनता था, यानी नज़र का चश्मा लगाता था, और उसने अपने वालिद साहब से ये झूठ बोला कि मुझे तो चश्मे के बगैर भी बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, तो मैं चश्मा पहने बगैर ही कार को चलाता हूँ। और उसका नतीजा क्या हुआ? द बॉय वॉज पार्किंग द कार। अब वो लड़का अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था एक जगह पर खड़े करने के लिए, क्योंकि वो बुक स्टोर के सामने हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये पार्किंग लेन बनी हुई है, और वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करना चाह रहा था। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि उसने चश्मा नहीं पहना और पार करते हुए उसको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किस जगह पर अपनी गाड़ी को रोकना चाह रहा हूँ। ही हिट द कार इन द बुक स्टोर, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने गाड़ी जाकर बुक स्टोर में मार दी। द फादर ऑफ दैट बॉय वॉज सीरियसली इंजर्ड, और उस बच्चे के, उस लड़के के वालिद साहब जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। देखा, झूठ बोलने से क्या हुआ कि उसके साथ उसके वालिद साहब को भी नुकसान पहुंचा, राइट? मुन्नू's फादर लुक्ड एट मुन्नू, मुन्नू के वालिद साहब ने मुन्नू की तरफ देखा एंड सेड, और कहा, सी, देखा माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, टेलिंग अ लाई इज सो हार्मफुल, झूठ बोलना कितना नुकसानदेह है। यू कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, इस हादसे से आप सबक सीख सकते हैं। मुन्नू रियलाइज्ड, मुन्नू को अंदाज़ा हुआ, मुन्नू ने ये फील किया, एंड प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, टू स्टॉप लाइंग, कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा। सो इस कहानी से हमने क्या सीखा, इसका इखलाकी सबक क्या है? नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, झूठ बोलना ऐसी बुरी आदत है कि इसके साथ और भी बहुत सी बुरी आदतें डेवलप हो सकती हैं। झूठ बोलने का कभी फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। और इसके ऑपोजिट, जब हम सच बोलते हैं उसका हमें हमेशा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? एक तो आप अच्छे बच्चे बनते हैं, सब कहते हैं कि हाँ ये एक सच्चा अच्छा बच्चा है, और इस दुनिया में हमें रिस्पेक्ट मिलती है। जो सच बोलने वाले लोग हैं सब लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। और आपको पता है सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ये हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है। ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 119 है। Allah will say, this is the day when the truthful will benefit from their truthfulness. अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि आज वो दिन आ गया है कि सच बोलने वालों को उनके सच का फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, दुनिया में जो हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा है बेटा, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम रखा है सच बोलने वालों के लिए। और वो इनाम क्या है? For them are gardens in paradise, उनके लिए जन्नत है। और वो किस तरह के बागात हैं? Beneath which rivers flow, जिसमें दरिया बहते हैं। Wherein they will abide forever, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। Allah being pleased with them, अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह उनसे खुश है। And they with him, और वो अल्लाह से राज़ी हैं। That is the great attainment, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा हासिल जो है बेटा, कामयाबी जो है ना, असल कामयाबी क्या है? हम जन्नत में पहुंच जाएं। तो ये सारी हमारी जो ज़िंदगी है इसकी एफ़र्ट क्या होनी चाहिए? अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राज़ी करना। क्योंकि जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत एक इनाम के तौर पर देंगे। और उस रास्ते पर चलने की एक खूबसूरत जो गोल्डन की है वो क्या है? सच बोलना। तो बेटा हमने आज ये पक्का प्रॉमिस करना है कि हम मजाक में भी कभी भी, बेटा एक जो मोमिन होता है, एक मुसलमान जो है ना, वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, राइट? तो हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, नो मैटर व्हाट। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी होती है कि सच बोलने से हमें डांट भी पड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उसका जो फ़ायदा है उस पर ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या है? जन्नत। तो इंशाल्लाह हम हमेशा सच बोलेंगे और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, राइट? तो इंशाल्लाह दैट्स इट अबाउट दिस यूनिट। कल हम इसके ग्रामर के लेक्चर से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको हमेशा याद रखना है और इनको अपने अमल में लाना है। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल कम अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। टिल दैट टाइम keep learning and take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.